So string is a collection of either characters or maybe the collection of character or alphabets, characters or numbers or maybe symbols, maybe other things. So whatever is stored inside single quotes or double quotes is known as string. So today we learn string, its introduction, traversing string, string operators, string slices, string functions and methods. So basic related to string. So फिर से हम बता देते हैं आज क्या क्या पढ़ेंगे. आज स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. स्ट्रिंग चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे. फिर स्ट्रिंग में कैसे मूव करते हैं, दैट इज गोइंग थ्रू द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, दैट इज अ प्लस एंड इनटू ऑपरेटर इज देयर. String slices, that is dividing the strings in number of substrings and related things, or extracting a part of the string. And string functions or different types of strings. So it is collection of characters, alphabet, maybe anything. Defining a string. So first it is a collection of characters, maybe the combination of characters and other things. Stored, it is the collection of characters or combination of characters and symbols or alphabets or numbers. Inside single quotes, सिंगल कोट्स मतलब इस तरह के कोट्स के अंदर, डबल कोट्स, इस तरह के कोट्स के अंदर. ओके. सो नेक्स्ट इज इट कैन बी एक्सेस्ड by index values. Starting from 0. Negative indexing is also there. Starts with -1 from right side. तो इसको समझो प्रॉपरली. सपोज एक स्ट्रिंग डिक्लेयर्ड हुआ and that string contains, suppose, India. Now it can be stored like this.
ठीक है। अब स्टोर ऐसे होगा आई एन और एक लास्ट कैरेक्टर नल रहता है, ठीक है ना, तो नल को दिखाया नहीं जाता। नाउ इसका इंडेक्सिंग इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 and negating string will start from -1 -2 -3 -4 and -5। तो ये है तुम्हारा string. It can be stored in a single quotes also, so as per your choice you can store anywhere. So do you have any question? Any question until now? No, sir. Okay. So this is a very simple like list, like tuples. The same thing is there indexing in a string. A string is only that it is a collection of things, and list is also a collection of things, but list is a little bit different than the string. Now a string you cannot do the calculation related work and other things. So whatever is storing in a string, that is in the form of character or alphabet. Suppose I am storing like a string suppose one string is like that, string 1, and it is stored 1 2 3. So you cannot do calculation there. So it can be stored like 1 2 3 1 2 3, but all these are the strings. So you cannot do any calculation there. You cannot write like a string 0 plus string 1. So it will not calculate there, it will give 1 2. So this is the difference, that string elements, although it contains numbers, but that is in the string form, so no calculation is possible there. So this is the difference between string and list elements. So list element is stored as per their characteristic. So if you are storing numbers, then that is the number, and if you are storing the string, then that is the string. Or in a list you can store the list also and other things also. So this is the introduction of the string. Now next क्या है, traversing a string. Traversing a string. So traversing an string means go through the strings, and this is actually a programming part. चलो अभी हम कोई स्ट्रिंग स्टोर करते हैं। मान लो कुछ स्टोर करते हैं, इंडिया ही स्टोर करते हैं। Now traversing in a string is very easy. For I in, you can write the name of the string and just give the print statement. It will print all the things there. So in this way you can traverse or go through the string. And suppose you want to print ये हो गया, ठीक है ना। ये इजी प्रोग्राम था, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा और इजी बना सकते थे।
तो इसको लिख सकते हो प्रोग्राम को, और भी घुमा फिरा के बहुत तरह का घुमा सकते हो, देख लो, है ना। उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो, सीधा उल्टा। ठीक है, सब लिख लिया? प्रोग्राम लिखोगे क्या? लिख लिया होगा हमको लगता है। देखो, ये प्रोग्राम है, ये आउटपुट। बंद कर दे? सही है। बहुत लंबा चौड़ा। देखो क्या कर रहे हैं, आई आई से क्या कर रहे हैं, इंडिया को हर एक कैरेक्टर को ले रहे हैं, और हर बार क्या कर रहा है, उस लूप के अंदर जो जे लूप चल रहा है उसका एक एक वैल्यू बढ़ते जा रहा है। मतलब पहले 0 टाइम के लिए हो रहा है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर अप टू 5 हो रहा है, 5 के बाद ख़त्म हो जा रहा है। एंड ईच एंड एवरी टाइम द इनर लूप इज गेटिंग इंक्रीमेंटेड बाय 1. So if the inner loop means J loop is running up to 1 time, then next time it will run 2 times, then third time it will run 3 times, fourth time is in this way fifth time. So when the fifth time comes, then it ends. So each and every time the inner loop is increased by 1. चलो ये हो गया, बंद कर देते हैं। ठीक है, और क्लोज करें? चलो, अभी जो है हम लोग कुछ प्रोग्राम तो बनाए ना, जो है इसमें कि वी हैव सम प्रोग्राम रिलेटेड टू, अभी हम लोग जो देख रहे थे उसमें नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। दिस इज द नेक्स्ट इज दिस वन, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, है ना। ये है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स अब पढ़ेंगे, फिर स्ट्रिंग स्लाइसेस करेंगे और स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ेंगे, है ना। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में दो ही ऑपरेटर है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में, है ना। तो ऑपरेटर का जो है लिख देते हैं। सो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, तो दो ही ऑपरेटर, एक प्लस और एक मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन ये प्लस उस तरह का प्लस में काम नहीं करता है, ये दो स्ट्रिंग को जोड़ देता है। जोड़ता है मतलब एडिशन, 1 और 2 का एडिशन करके 3 नहीं आएगा, 1 और 2 को एडिशन करोगे तो 1 2 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करोगे मतलब 3 टाइम प्रिंट कर देगा। ये दिखा देते हैं, ठीक है ना। मान लो एक स्ट्रिंग है, सपोज स्ट्रिंग, इसमें स्टोर हमको अलग से करना होगा, इंडिया, एंड नेक्स्ट स्ट्रिंग इज ए कंट्री। और हम अगर लिखते हैं प्लस एस एक्स
SXTR1, तो ये दोनों जोड़ देगा, ठीक है ना, और कुछ करेगा नहीं। मान लो तुम लिखते हो, ठीक है ना, मान लो यहाँ पर है एक स्ट्रिंग एस, इसके अंदर है 1 2 3, ठीक है ना, और एक स्ट्रिंग है S1, इसके अंदर है 4 5 6। तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, दोनों को एडिशन नहीं करेगा। उसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन वाला देखोगे तो मान लो स्ट्रिंग 1 इंटू 5 करोगे तो 5 बार इंडिया इंडिया करके प्रिंट कर देगा, है ना। डिफाइन नहीं हुआ था, लिखने में थोड़ा गड़बड़ है, STR स्मॉल में है ना, STR इंटू 5, तो ये 5 बार इंडिया प्रिंट कर देगा। तो दिस इज द स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, यही है स्ट्रिंग ऑपरेटर। नेक्स्ट तुम्हारा है अच्छा देखो, मेंबरशिप ऑपरेटर इसमें पढ़ना है। स्ट्रिंग ऑपरेटर में दो चीज़ तो पढ़े हैं, तुम्हारा प्लस और माइनस, एक दो मेंबरशिप ऑपरेटर एक वो होता है, ठीक है ना। अभी जितना आज हो सकता है, एक ऑपरेटर और है इन और नॉट इन। तो दो ऑपरेटर है यहाँ पर, एक इन है और एक नॉट इन। इसका छोटा सा हम, इन मतलब if something exists in a particular string or not in means that is not existing। तो इनका मतलब है कि नहीं, सिंपल सा समझोगे तो है कि नहीं। अब मान लो हम यहाँ पर देते हैं, स्ट्रिंग पे तो मेरा स्टोर है कुछ, ठीक है ना। अब हम यहाँ देते हैं तुम्हारा आई इन STR, दिख रहा है ना, तो ये ट्रू देगा। अब यहाँ लिख देंगे आई इन STR, तो क्या देगा, आई इन द कैपिटल स्मॉल दोनों को ले रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर हम दे रहे हैं, अच्छा दोनों है एक्चुअली इसीलिए ले रहा है। मान लो हम दे रहे हैं INDIA, एस दे रहे हैं, एस दे रहे हैं, एस इन STR, ये सब बहुत काम देता है, तो फॉल्स होगा। So if that string, that substring or that particular character is not available in that string, then it will display false or it will return false। और not in का केस है, जब ऐसे लिखेंगे as not in, इसका प्रोग्राम भी बनेगा बाद में, not in STR, तो क्या हो जाएगा, ये देगा ट्रू, यही है। These are the सब स्ट्रिंग भी हो सकता है। मान लो हम दे दिए IND इन स्ट्रिंग, तो ये भी देगा ट्रू, है ना। तो कोई सब स्ट्रिंग दे सकता है, कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दे सकता है, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा, दैट इज द मेंबरशिप ऑपरेटर्स। Membership operators, there are two membership operator, in or not in, and in and not in is for if something exists in a particular object, then it is in will return true. If it is not exist, then it will return false, and not in is just opposite of the in। अब इस तरह से कंपैरिजन भी हो सकता है, कंपैरिजन ऑपरेटर का कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना।
सो यू कैन डू द कंपेरिजन्स ऑल्सो। मान लो हम कंपेरिजन करते हैं, एक str तो मेरा एक स्टोर है, अब हम स्टोर करते हैं str1 और इसमें स्टोर कर देते हैं कुछ, है ना। मान लो स्टोर करते हैं कैपिटल, तो अब कौन किस्सा बड़ा है, तो स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग इज टू string1, तो ये क्या देगा, फॉल्स। स्ट्रिंग इक्वल टू string1, ये देगा फॉल्स। उसके बाद तुम अगर लिखते हो स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन string1, तो कौन बड़ा है, अनिश बताओ तो, string1 बड़ा है कि स्ट्रिंग बड़ा है। बोथ द स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग विद द कैपिटल, तो कैपिटल में आई बड़ा होता है सी से, नहीं, तो स्ट्रिंग इज बेटर तो यहाँ ट्रू देना चाहिए ना, फर्स्ट कैरेक्टर का ही देगा। देखो ट्रू दिया, दिख रहा है ना तुम लोग को, लास्ट में प्रिंट हो रहा है, विजिबल और नॉट। तो इन दिस वे यू कैन चेक, तो इन दिस वे यू कैन चेक, and next day we'll learn the slicing of string and the methods of string.